Namaste and welcome to this very special edition of The Right Stand this Friday evening. I am Anand Narsimhan. Ladies and gentlemen, when we got you the story of Jamtara and Jharkhand, did it surprise you that in certain pockets of our country, there are groups that have decided that it will be their rule that will be followed because they are now in the majority. This is the so-called minority, Muslim groups, where they believe that if they are more than 70%, the rules have to change, despite the fact that they have not yet applied or they don't have the state sanction to do so. The example that we're going to bring to you is from neighboring Bihar. So Bihar and Jharkhand were all together. At one point in time, the state of Jharkhand was carved out. But in this entire Simanchal belt, ladies and gentlemen, the findings are startling. The findings are shocking. Locals for in some cases near many decades have decided that they will follow Jummah or Friday as the official holiday, despite not having the approval or the sanction for the same, not being a government recognized Urdu school. Urdu schools have a rule, just like certain Shiksha Vidyalayas or Sanskrit Vidyalayas can take certain days off based on the Hindu Panchang. But in this case, the numbers are shocking and startling. If I were to tell you that nearly 500 government schools, which are not designated Urdu schools, have already decided to follow Friday off or Jummah off, this is our on-ground investigation. The investigation very clearly says that there are groups and there are pockets where the so-called minority or Muslims have decided that if they are larger in number, it is their rule that has to be followed. Many people, even from the Muslim society, locals are unhappy with this decision. They believe this is being forced. If everybody across the country has a rule or a nation that the weekend is Saturday and Sunday and the full day off is Sunday, then why is it that in these pockets Friday should be imposed? Why should it be imposed on government schools without an official sanction? That's the bigger question. Government schools without state sanction and without being deemed or recognized as an Urdu school. This is being forced upon them. And this is an unwritten law which is being forced and which is meant that it has to be followed. Don't believe it? Have a look at our on-ground investigation. Bihar's Simanchal region has a significant Muslim population. Over 65% in Purnia, Katihar, Kishanganj and Araria. Here, more than 500 government schools have been observing Fridays as their weekly holiday instead of Sunday. आप क्या चाहते हैं? आपको छुट्टी किस दिन मिले? संडे को? संडे को। क्यों? मेरा पापा लोग के साथ रहना चाहिए। यहाँ तो जो किशन की छुट्टी जो होती, जो हम लोग पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो शुक्रवार को छुट्टी होती है, क्योंकि आतवार को छुट्टी होता है हर स्कूल में, तो बच्चा सब खेलता है और हमारा बच्चा जो है पढ़ने के लिए जाता है। वो अंदर में रहना चाहिए। संडे को अंदर, एतवार को अंदर में रहना चाहिए। एतवार को संडे को ये रहना चाहिए। Hindu and Muslim primary school teachers here also want Sundays off instead of Friday. हम लोग बहुत कोशिश किए संडे छुट्टी के लिए, अभी तक हो नहीं पाया है। संडे छुट्टी का बहुत सख्त ज़रूरत है हम लोग को। घर में भी है, रास्ता में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। मदरसा का भवन में चल रहा था, मदरसा से अलग हुआ, जब ज़मीन दिए तो ये अलग हो गया, तो अब तो संडे होना चाहिए। How far is it justified for a particular community to set its own rule and flout government's rule? Now, many families are switching schools so that their kids can have Sundays off. पापा काट दिए उसका नाम? क्यों काटे? इसलिए वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। किस दिन होता था? जुम्मा के दिन होता था छुट्टी। और यहाँ पे नहीं होता है जुम्मा के दिन। यहाँ कब होता है छुट्टी? यहाँ पे एतवार। एतवार को होता है। हिंदू स्टूडेंट्स 60% एंड 40% मुस्लिम स्टूडेंट्स। संडे उसका छुट्टी का दिन बनता है, इसीलिए सब बच्चा भी चाहता है कि नहीं हम लोग संडे वाले स्कूल में ही, जहाँ छुट्टी रहता है संडे को, उसी स्कूल में जाए। It is unfair
for the teachers and children to observe holidays on Friday, because most of the families are free on Sundays, and also the children and their friends are free on Sundays, so that they can play and spend time with their family. Bihar's education minister says he's taken note of the matter. हम लोगों ने डीओ से जहां जहां ऐसी सूचना मिली है अभी तक, हम लोगों ने वहां के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहां क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है. But the regional deputy director of education is unaware of any report being sought. अखबार के द्वारा हमें पता लगा है, अखबार के द्वारा हमारे डीओ भी दे रहे हैं, तो अखबार से सब जानकारी आ रही है, लेकिन डायरेक्ट आरडीडी स्तर से हमें कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है. These 500 plus schools have been observing Fridays as a holiday for years without any government directive to this effect. With video journalists Sahboob Alam and Saurabh from the Simanchal region of Bihar, Vaibhav Verma for CNN News 18. Well, there you go. That's the story. Let's just briefly summarize it for you. The top lines, ladies and gentlemen. Holiday in 500 government schools in Simanchal region. No official sanction. Nobody knows who's decided this and how is this diktat on. Rule in Muslim areas of Kishanganj, Araria, Katihar and Purnia. Practice in majority of the schools in Jokihat block of Araria. Holiday in 229 out of the 244 government schools in the Jokihat block. Practice in 200 government schools in Purnia and 19 in Kishanganj. Rule in the Muslim majority Jamtara district of Jharkhand. And rule implemented in 25 to 30 schools in Jamtara and Jharkhand. And holiday in 33 government schools in Dumka in Jharkhand. Now this is that entire Simanchal belt, and it curves down like this if you were to plot it in a map. And the question that we are asking straightforward, ladies and gentlemen, who's deciding all of this? Isn't this brazen subversion which is at play? And how is it that there is none the wiser? Who's emboldening this Jummah fever? The Jummah row spreads as we dive into the debate. Sanju Verma, national spokesperson of the BJP with us. Mayank Kumar Sinha, leader of the JDU. Chittaranjan Gagan, spokesperson and general secretary of the Bihar RJD is with us. And Atikur Rahman, Islamic scholar, also with us. Let me start with Chittaranjan Gagan. Chittaranjan ji, कुछ जगह तो कहा जा रहा है कि 20-30 साल से ऐसा चल रहा है. ऐसा कोई आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है, तो क्या कोई रूल है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ गई तो उनकी ही चलेगी? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा का सुदृढ़ीकरण कैसा हो, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है. डिबेट किस चीज पर हो रहा है? तो जुम्मा के दिन छुट्टी क्यों हो गया, रविवार को छुट्टी क्यों नहीं हुआ. लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिन विद्यालयों में यह चल रहा है, कोई माने आज से चल रहा है सो बात नहीं है, काफी दिनों से वहाँ पर यह चल रहा है, जो वहाँ पर शुक्रवार के दिन छुट्टी दिया जाता है. और केवल यह सरकारी विद्यालयों में ही नहीं है, विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, उसमें एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन छुट्टी दिया जाता है. कौन सा विश्वविद्यालय है? मैं कहना चाहूंगा नहीं, कौन सा विश्वविद्यालय, क्या बोले आप चित्रंजन जी? कौन सा विश्वविद्यालय है? कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है ना. तो संस्कृत विश्वविद्यालय की नियमावली अलग होती है कि नहीं होती है? नहीं, तो मैं वही उसकी नियमावली अलग होती है कि नहीं? अरे चित्रंजन जी, रुकिए, आप तथ्य पे बात कीजिए. संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि वो डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो उसकी नियमावली अलग होती है कि नहीं? डीम्ड नहीं है. मैं कह रहा हूँ अगर डीम्ड नहीं, संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि वो संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, संस्कृत के लिए विश्वविद्यालय है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय की नियमावली अलग होती है कि नहीं? उनको ये सुविधा होती है कि नहीं कि वो अपनी छुट्टियां तय कर सकें?
जिस तरह सरकारी नियम में देखा बताया जाता है कि अगर आपका सरकारी स्कूल उर्दू स्कूल डेसिग्नेट होता है, अरे बात तो पहले चितरंजन जी मैं पूछ रहा हूं, अगर सरकारी स्कूल को उर्दू स्कूल घोषित किया गया है तो उन उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी नियमित होती है, वो शुक्रवार को छुट्टी कर सकते हैं? बता रहा हूं मैं, बताइए। सवाल यह है कि कोई आज से यह नहीं हो रहा है, जब से रविवार को छुट्टी चल रहा है उसी समय से वहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? आपने भी सवाल नहीं पूछा, चल रहा है तो चलने दे, कुछ गलत हो रहा है तो होने दे। आप सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, कुछ गलत हो रहा है तो होने दे। लीजिएगा, सवाल क्रॉस करने लगिएगा। और हर विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति होती है जिसको यह अधिकार है, क्या अधिकार? स्थानीय स्तर पर निर्णय ले और कोई आदेश तो होगा ना, पढ़ाने के लिए है, कोई आदेश तो होगा ना, पढ़ाई कैसे, कोई आदेश के लिए कोई आदेश होगा ना, वहाँ के पेरेंट्स की सम्मति है, वहाँ के टीचर्स की सम्मति, अध्यापकों की सम्मति। अध्यापक तो कह रहे हैं कि हम संडे को छुट्टी जाते हैं, हमको संडे काम करना पड़ता है। परिवार कहता है कि नहीं हम तो चाहेंगे कि संडे को बच्चे घर पे रहे क्योंकि सारे बच्चे घर पे हैं। कुछ ही स्कूल में क्यों हो रहा है? नहीं तो फिर आप क्या, कोई भी कुछ भी डिसाइड कर लेगा और डिसाइड करके अगर गलत डिसीजन है तो वो चला जाएगा। नियम की जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्या बता रहे हैं? मदरसे में छुट्टी शुक्रवार को होती है। कहाँ पे? दूसरा बात, हर विद्यालय में प्रबंध समिति होती है जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेती है। यह किसी के कहने पर, किसी मुसलमान के कहने पर वह नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर किसके कहने पे हो रहा है? किसके कहने पे हो रहा है कि देश भर में सारे सरकारी स्कूलों में संडे को छुट्टी होती है, सिर्फ जो उर्दू स्कूल जो डेजिग्नेटेड है वो शुक्रवार को छुट्टी कर सकते हैं? यहाँ पर 500 से ज्यादा स्कूलों ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम शुक्रवार को छुट्टी करेंगे। क्यों करेंगे? आप हमको जवाब दीजिए ना कि 17 साल से जो भाजपा यहाँ पर सरकार में बैठी हुई थी उसको आज यह नींद खुली है। आज जब मार्च पर चुनाव, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो सरकार में बैठे हुए थे, तब आपकी आंखें बंद थी। जेडीयू जब सरकार में थी तो उसकी आंखें बंद थी, भाजपा जब सरकार में थी तो क्या उसकी आंखें बंद थी? कोई अपनी मनमानी करता चला जाएगा, इन सारे जिलों में करता चला जाएगा, तो क्योंकि वहां पर आबादी मुस्लिम बहुल जगह है तो वहां पर जो नियम उनके हैं वही चलेंगे। ये भारत है, ये भारत है कि पाकिस्तान है? ये भारत है कि बांग्लादेश है? भारत संविधान से चलता है, नियम से चलता है ना। नहीं, इसको कोई आप जो है सो उर्दू और अति के नाम पर माने आप अति करने देंगे थोड़े। यहाँ बिहार को टारगेट किया जा रहा है। बिहार को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है, झारखंड में भी चल रहा है, जामताड़ा में भी चल रहा है। कहीं पर भी आबादी ज्यादा हो गई तो छुट्टी हम तय करेंगे, ये नियम कैसे हो सकता है? संजू वर्मा ऑफ द बीच, संजू वर्मा प्लीज कम इन। नहीं तो क्या नाउ वील स्टार्ट डिसाइडिंग बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड मेजोरिटी हाउ द हॉलीडेज विल बी एंड हाउ थिंग्स विल रन? So tomorrow you will have these petitions coming up in Tamil Nadu. They'll come up in Karnataka. They'll come up in other areas. Nearly 100 districts in our country where Muslims are in majority. So they will all decide that they will have Friday chutti. Sanju Verma. Or there will be radical outfits or groups that will pressurize everybody else despite nobody wanting Friday chutti. I am not saying all Muslims want it. All Muslims in Jamtara, all Muslims in Katihar, all Muslims don't want it. In fact, we have got Muslim families, Muslim teachers, children who don't want chutti on Friday, but they have to follow the rule. Anand, first and foremost, I would like to thank you for breaking this story repeatedly over the last couple of weeks. You've done, quite a few shows where you brought to our attention how this entire narrative pertaining to Ghazwa-e-Hind, how it is being established and trying to bring faith into the domain of institutions, especially education institutions. I think that's a new law. I will tell you one thing. To the gentleman who was, speaking in favor of क्या फर्क पड़ जाता है यदि जुम्मे की छुट्टी ले लेते हैं बच्चे संडे की जगह या शनिवार की जगह? पहली बात तो ये, if it is Urdu school or if it is a minority designated school under Article 29, 30, Article 31 and Article 32 of the Constitution, minorities are already given enough cultural, educational and linguistic right to protect their interest. But एक तरफ आप बोलते हो कि संविधान के तहत आर्टिकल 29, 30, 31, 32 के तहत मुझे जो राइट मिली है मैं उनके हक के तहत सरकार से I will derive as many benefits and concessions as possible. दूसरी तरफ आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कहते हो कि यदि उर्दू स्कूल नहीं भी है तो यदि जुम्मे को छुट्टी दे भी दी गई तो कौन सी बड़ी बात है?
विजय कुमार चौधरी जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि किशनगंज और कटिहार, पूर्णिया, कई मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू है और पता लगाया गया है कि ये स्कूल उर्दू नहीं है, पर फिर भी जुम्मे के दिन छुट्टी दी जाती अभी है। ऐसा नहीं बयान आया, अभी ऐसा बयान नहीं आया, अभी ऐसा बयान नहीं आया, आप गलत इंटरप्रेट कर रही है। लीजिए, बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। तो आई एम सेइंग दिस इज अ मैटर दैट इज नाउ something that has been taken cognizance of by the Bihar state government. अब मैं आपको एक बात बताऊं संजू जी, बीजेपी कंबाइंड स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर विजय चौधरी ने कहा है कि हमने डीओ को नोटिस भेजा है, पर वहां के डीओ कहते हैं हमको तो अखबारों से पता लग रहा है। वहां के शिक्षा के जो संस्थापक हैं वो कह रहे हैं हमें तो कोई ऑर्डर नहीं आया, हमको तो अखबार से पता चल रहा है कि जो भी हो रहा है। एंड व्हाट चितरंजन जी इज आस्किंग इज, बिहार में कितने साल से बीजेपी सरकार में है, तो आपको क्यों नहीं पता लगा? व्हाई डिडंट यू नो? आनंद, मैं एक चीज कहना चाहूंगी आपके शो के माध्यम से, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अ छुट्टी और जुम्मा का दिन, देयर इज अ लार्जर डिबेट। अर्लियर ऑल्सो स्कूल्स इन जामताड़ा एंड दुमका। नहीं, 17 साल के बाद आज नींद क्यों खुली? सवाल यह है, आप अभी 17 साल से आप सरकार में हैं, आज ही यह नींद क्यों खुली? दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, चलिए आप बोल लीजिए, आप जब बंद हो जाएंगे आपको जितना मन है बोल लीजिए, उसके बाद मैं अपनी टिप्पणी करूंगी। नहीं, मेरा यह सवाल है संजू जी कि 17 साल से आप बिहार में सरकार में हैं और आज ही यह मामला क्यों आपको याद आया? यह तो आपका फेलियर है, यह तो आपकी नाकामी मानी जाएगी। फिर ऐसे लोगों को सरकार में बने रहने का क्या आधार है जिनको अभी पता नहीं है? एक दो विद्यालय की बात नहीं है, एक दो विद्यालय की बात रहती तो यह माना जा सकता था। इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय में You don't allow me to interrupt, but this man is being given a free run. Please, अभी चुप हो जाइए, आपने बहुत कुछ बोला है, सिर्फ बोलने की डिबेट नहीं है, सुना भी कीजिए। आपने इल्जाम लगाया कि 15-17 साल से हमारी सरकार है। अभी जब कोई चीज सरकार के समक्ष आएगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, संविधान के तहत, न्यायपालिका के तहत। यदि उल्लंघन हुआ है तो जिन लोगों ने उल्लंघन किया है उन पर जो मुकदमा यदि चलाना है मुकदमा चलाया जाएगा। संविधान की व्याख्या आप गलत कर रहे हैं, एक्शन लिया जाएगा। वही आर्टिकल 29, 30, 31 का आप व्याख्या गलत कर रही हैं। आप कोई व्याख्या उसी आर्टिकल, वही आर्टिकल 29, 30, 31 के आधार पर मुसलमानों को बहुत राइट्स मिले हैं संविधान में, आर्टिकल 29, 30, 31 के तहत। पर यदि उर्दू स्कूल नहीं है तो वही मैं कह रहा हूँ। क्या नहीं, उसमें आप जो संविधान की धारा 29, 30, 31 की चर्चा कर रहे हैं, उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि उसका उल्लंघन कौन कर रहा है? क्यों? कौन लोग हैं जो उसके खिलाफ जा रहे हैं? मैंडिटी के अधिकार को छीन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के तहत जो अभी जांच हुआ नहीं, आप कार्रवाई करिएगा, करना होगा, हम करेंगे। नहीं, अभी तो आपके मंत्री बोल रहे हैं कि जांच करवा रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह नहीं चलता है मैडम, संजू जी, यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं चलता है। आपके मंत्री बोल रहे हैं कि मैं जांच करवा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या बना के रख दिया हर मामला में, हर मामला अच्छा, अब आप शब्दों में उलझाइएगा, शब्दों में नहीं, शब्दावली और शब्दों में उलझाकर आप डिबेट को घुमाने की कोशिश कीजिएगा। चितरंजन जी, मैं ये पूछ रहा हूं, 17 साल से अगर ये चल रहा है और अगर जो चल रहा है वो गलत है, अगर सरकार में भाजपा थी तो फिर विपक्ष में आरजेडी भी तो था, आरजेडी ने मुंह खोला, कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो संविधान के खिलाफ है, ये होना नहीं चाहिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि संविधान के खिलाफ। आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा नहीं, आपकी पार्टी ने तो 17 साल में कोई शोर नहीं किया। जब इन 17 सालों में और उसके पहले और उसके बाद में और बीच में कभी कभार जब आप सरकार में थे तब आपने कितना शोर मचाया? देखिए, संजू जी कह रही थी, उदाहरण दे रही थी आर्टिकल 29, 30 और 31 का, उसी के आधार पर यह विरोध कर रही हैं, यह संविधान के खिलाफ जा रही हैं। संविधान के तहत ही मैंडिटी को जो अधिकार मिला हुआ है, संविधान के तहत किसको अधिकार मिला है? संविधान नहीं, संविधान के तहत किसको अधिकार मिला है? अल्पसंख्यक। पर इन जिलों में तो मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, इन जिलों में तो मुसलमान बहुसंख्यक हैं।
तो यहाँ पर अधिकार किसका होना चाहिए? यहाँ पर अधिकार किसका होना चाहिए? यहाँ पर अधिकार किसका होना चाहिए? यहाँ पर अधिकार किसका होना चाहिए फिर? अरे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। इस सीमांचल के इन जिलों में मुसलमान समुदाय या मुस्लिम समुदाय तो बहुसंख्यक हैं, तो फिर आर्टिकल 29, 30 और 31 के राइट्स उनको कैसे एक्सटेंड हो गए? वहां पर तो हिंदू और जो नॉन मुस्लिम्स है उनको वो अल्पसंख्यक हुए। अच्छा, एक चीज का मुझको जवाब दीजिए। अब अरे आप मेरे सवालों का कब जवाब देंगे? आप मेरे सवालों का कब जवाब देंगे? ना चित्ररंजन जी, आप मेरे सवालों का कब जवाब देंगे? व्हेन विल यू आंसर माय क्वेश्चन? नहीं, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए चित्ररंजन जी, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, तो मुस्लिम समुदाय की कैसे चलेगी? यहाँ पर तो आर्टिकल 29, 30, 31 के तहत हिंदू समुदाय को देना चाहिए या नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम समुदाय की बात मानी जानी चाहिए। यहाँ पर तो उनके राइट्स का हनन हो रहा है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। विद्यालय का मकसद है विद्यार्थी को पढ़ाना। अरे वाह, गोल पोस्ट बदल दिए आप, मुस्लिम हैं, बढ़िया से गोल पोस्ट बदल दिए। देख रहे हैं आप कैसे गोल पोस्ट बदल दिए? जैसे ही हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो विद्यार्थी का विद्यालय का काम क्या है ये आप समझा रहे हैं? क्या मतलब? ना, अब जैसे ही हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो फिर आप विद्यालय का अर्थ क्या होता है और विद्यालय को क्या करना चाहिए वहां की उसकी व्याख्या करेंगे आप। अब उसकी व्याख्या करेंगे। ना रुकिए, मयंक कुमार जी और अतीकुर रहमान। मयंक कुमार जी बताइए, जेडीयू के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं आई हैव सेंट अ नोटिस टू द डीओ, मैंने नोटिस भेजा है, लेकिन वहां पर विद्यालय कह रहे हैं हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। ये सबकी नोटिस से कैसे रह गया ये? दिस इज अ क्वेश्चन जो मेरे को खाई जा रही है कि भाई इतने सालों से ये चल रहा है, ये किसी के नोटिस में ही नहीं आया। I will explain it. It is an extremely sensitive matter, and officials of Bihar Education Departments are doing investigation on this part, and the investigation is currently undergoing. मैं एक बात आपको बता देता हूं, जो चितरंजन गगन जी थे, राजद के प्रवक्ता थे, बता रहे थे, संविधान की दुहाई दे रहे थे। अगर इनको इतना ही संविधान पता होता तो इनके जो नेता जो प्रतिपक्ष हैं वो आज बेल पे बाहर नहीं रहते हैं, और लालू जी बेल पे बाहर नहीं रहते हैं। जो उन्होंने किया था 15 साल, एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने तो खत्म करने का काम किया। और हमारी सरकार ने, जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी कि हमारी सरकार ने जीरो से उठाने का काम किया है, माइनस में था एजुकेशन सिस्टम। और जो आप ये जो कह रहे हैं छुट्टी की बात है, उस पर इन्वेस्टिगेशन है अभी चल रहा है। और हमारे जो मंगलवार, अब बता देता हूं मैं कि मंगलवार को माननीय जो मंत्री थे उन्होंने नोटिस भेजा है कि इस पे क्या है, मुझे आप भेजिए रिपोर्ट। जो 37 स्कूल हैं उसको लेकर, 37 स्कूल सर, टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स आर 500 स्कूल है मयंक। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि देखिए कोई जुम्मे की छुट्टी नहीं होगी, सब जगह संडे की छुट्टी होगी। इंक्वायरी के बाद उनको सजा दी जाएगी जिन्होंने यहाँ जुम्मे की छुट्टी कराई है बिना ऑफिशियल सैंक्शन के, बिना स्टेट गवर्नमेंट के। बिल्कुल आवर गवर्नमेंट इज टोटली कमिटेड फॉर लॉ एंड ऑर्डर। हमारा सरकार पूरा कमिटेड है उसको, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है। रूल ऑफ लॉ हमारा पहला चीज है। मयंक जी से मेरा एक सवाल तो इस प्रकार से आप ये मत बोलिए। नहीं, आप सवाल बहुत पूछते हैं, पहला आप थोड़ा धैर्य रखिए। आप बड़े हैं, आप आदरणीय हैं, थोड़ा बड़े हैं, तो थोड़ा धैर्य भी रखिए सुनने के लिए। नहीं, सवाल है कि आपका जवाब कंट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, उधर मंत्री कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। आप तो सबको मैंने ये नहीं बोला है कि मैंने ये नहीं बोला आपके राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, मैंने ये नहीं। पहले मेरी बात को सुन लीजिए। आप सवाल बहुत पूछते हैं, अभी कभी धैर्य रखिए सुनने का भी। जब कोई व्यक्ति बोलता है उसको सुनिए भी, ठीक है ना। तो जो भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, मैंने क्या बोला, इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, आवर गवर्नमेंट विल टेक द एक्शन।
But on those till then, officials. but till ठीक है? then, Mayank Kumar, but Who are till then, directly or Mayank Kumar, indirectly you have involved to in this go case. back to what is the rule. एक चीज मयंक जी से Till मेरा then, सवाल है, Mayank एक चीज। Kumar, the point is the Bihar government has to go back to what is the norm. The norm is that all schools will be closed on Saturday and Sunday, or on Sunday for sure. There will be no Friday offs for non-designated schools. Non-Urdu designated schools, there will be no Friday off. That should be the first order. यहाँ तो अभी 500 स्कूल जब तक इंक्वायरी होगी तब तक वही चलेगा. नहीं, एक चीज ऐसा और नहीं सवाल है। पूछिए मयंक उनको जी जवाब से। देना है हमारे। अरे चित्रंजन जी, आप तो ऐसा है कि आपने बोला कि जितने सवाल मैं पूछूंगा वो सब सुनेंगे. आप मेरे से जो सवाल पूछे जाएंगे मैं गोलपोस्ट बदल के ना आंसर कर दूंगा. ऐसा नहीं हो सकता ना. आपसे मैंने 5 सवाल पूछे, आपने एक का जवाब नहीं दिया. मैंने आपसे क्या पूछा चित्रंजन जी? मैंने आपसे पूछा है इस सारे सीमांचल में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो हिंदू के राइट्स का क्या हो रहा है 17 साल में? बताइए. 40 साल में क्या हो रहा है बताइए. पिछले 5 साल में क्या हो रहा है मुझे बताइए. इन हिंदू अल्पसंख्यकों की राइट्स के लिए आरजेडी ने क्या आवाज उठाई है मुझे बताइए. हिंदू जुम्मे के दिन छुट्टी क्यों ले मुझे बताइए, जबकि संडे छुट्टी होनी चाहिए. नहीं वहाँ पर तो अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वह जुम्मे को नमाज में पढ़ते हैं, विद्यालय में आते नहीं, इसलिए छुट्टी हुआ. और मयंक जी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं. जुम्मे को नमाज के लिए आप रिसेस दे रहे हैं. जुम्मे को नहीं तो फिर क्या? जुम्मे को नमाज के लिए आप रिसेस दे, तो फिर आप क्या? एक बात बताइए, तो वो जो हिंदू छात्र है उसके राइट का क्या? वो जो हिंदू छात्र है उसके राइट का क्या? वो जो हिंदू छात्र है उसके राइट का क्या? आर्टिकल 29, 30, 31 क्या सीमांचल में हिंदुओं के लिए नहीं अप्लाई होता है? मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र कुशवाहा जी की बात सही मानी जाएगी, जनता दल का बयान माना जाएगा. मेरी बात सुनिए ना पहले आप. अरे बात सुनिए ना पहले. फिर आप लाइन बदल रहे हैं. चित्रंजन जी, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ वहां आपको आपकी पीड़ा कम हो जाती है, आपकी व्यथा कम हो जाती है. नहीं ये केवल मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं. माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने मंगलवार को सारे प्रेस के सामने बोले हैं. अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, विपक्ष मंत्री जो माननीय मंत्री वो बोलेगा ना. माननीय मंत्री ना बोलेगा के लिए खड़े रहिएगा. माननीय मंत्री ना बोलेगा. मैं पूछ रहा हूं चित्रंजन जी, माननीय मंत्री मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि अरे चित्रंजन जी एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए. चित्रंजन जी एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए. मैं पूछ रहा हूं चित्रंजन जी, आप तो विपक्ष में हैं, आप कह रहे हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है. सीमांचल के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए आप खड़े हो जाएंगे? आप कहेंगे कि हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, जिन स्कूलों को कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते. तो फिर आप जुम्मे की राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो फिर आप जुम्मे की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए कि आप संडे को छुट्टी लीजिए, तो आप जुम्मे की राजनीति क्यों कर रहे हैं? जुम्मे की छुट्टी को सही क्यों ठहरा रहे हैं जबकि वो अलाउड नहीं है? जुम्मे की छुट्टी को सही क्यों ठहरा रहे हैं जब आपको अलाउड नहीं है? अगर आप नहीं करते हैं चित्रंजन जी सुनिए, अगर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं तो फिर आपको यह कहना चाहिए कि जो नियम है उसी नियम के अनुसार छुट्टी होनी चाहिए, भले ही उस स्कूल में हिंदू ज्यादा पढ़ते हो या मुसलमान ज्यादा पढ़ते हो. आपने क्या कहा? अगर मुस्लिम ज्यादा है तो जुम्मे की छुट्टी कीजिए. मैंने कहा अगर हिंदू कम है तो उनके राइट्स का क्या? तो आपने कहा कि नहीं, विद्यालय है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं. तो ये तो आपका दोगलापन हो गया. आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो दिख रहा है. Now, Sanju Verma, please come in. Sanju Verma, my point is, why is there the Bihar government is run in tandem as a coalition between the BJP and the JDU? Let me ask you this: why have the orders not been passed that all schools should immediately revert to the original rule and Sunday format immediately? That order has not been passed on Tuesday. Anand, even as the debate was going on, I just found out that जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं ताराकिशोर प्रसाद, वो और विजय कुमार चौधरी जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन दोनों से लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि स्कूलों को कहा जाएगा क्लियरली कि बिहार एजुकेशन एक्ट 1961 और बिहार एजुकेशन अमेंडेड एक्ट 1966 के तहत यदि आप उर्दू स्कूल डेजिग्नेटेड नहीं हो तो आपको बकायदा शुक्रवार नहीं पर शनिवार और रविवार को ही छुट्टी मिलेगी. और यदि आपने छात्रों को मजबूर किया कि जुम्मे के दिन छुट्टी लो तो आप पर कड़े से कड़ा नियम अनुसार कार्यवाही ही नहीं, आपको
बहुत कुछ झेलना पड़ेगा. Okay, big news once again. 1 minute. I'm going to come back to you on a two window. And Sanju Verma, please repeat this order just now. This is breaking here on the right stand. This is the latest order that Sanju Verma is saying has been passed by the Deputy Chief Minister in Bihar. Yes, go ahead, please. Please tell us again what is the order that's been passed. Anand, I will refrain from saying that the order has been passed, but there is a consensus that Tarakishore Prasad and Vijay Kumar Chaudhary, the Education Minister, are in tandem to come out with an order stating that if there are schools that are not designated as Urdu schools or minority schools, vide Bihar Education Act 1961 or the amended Bihar Education Act of 1966, then not only will a proper probe be conducted against the concerned school, but due punishment will also be meted out to those authorities who are flouting the State Education Act of 1961-66 and forcing students to take a holiday mandatory on Friday rather than Saturday and Sunday. या तो हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई जहाँ पर छुट्टी हो ठीक रही है, है तो मैं ताराकिशोर जी, I'm going to check with our team उर्दू स्कूल के रूप में in the next 5-7 minutes जो स्कूल उर्दू through the time of this debate. अरे अभी तक तो आप उनके लिए बैटिंग कर रहे थे, अभी बोल रहे हैं हम तो यही कह रहे थे. सर आप इधर भी बैटिंग कर रहे हैं, उधर भी बैटिंग कर रहे हैं. एक तरफ रुकिए सर, ऐसा मत कीजिए चितरंजन जी. जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं जो आपके लिए डिफिकल्ट होते हैं, आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं. नहीं तो फिर आप कहते हैं कि बैट्समैन भी मैं हूं, नॉन स्ट्राइक पर भी मैं बैटिंग करूंगा. ऐसा मत कीजिए. आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सी इफ आवर टीम कैन गेट इन टच विद चौधरी जी और ताराकिशोर जी, and if we can get them on the phone and get a confirmation of what Sanju Verma has just told us. Atikur Rahman ji, namaste. This should not be allowed, sir. Either you get state sanction, and you act as per permission. Otherwise, bullying your way through and cause through is not a fair thing to do. And if people are allowing it, then this is appeasement and this is not good. This is bad politics. Anand, candidly speaking, this is a very disturbing factor, at least in education or elsewhere also. Communalization is, rather not accepted, As far as the religion of Islam is concerned, I should say, Anand, there is no concept of a holiday in Islam. The most auspicious day, which is an Eid day, rather than offering 5-time namaz, we offer 6 times namaz. The concept of a sabbath is a Christian concept. Allah wants his, pious devotees to be performing all the day-to-day routine jobs and then come and offer the prayers and the namaz. Even during the Ramzan times, there is no sabbath, no holiday, no concessions. A day-to-day affair, schooling, office, regular business, going to the market, coming back with all responsibilities conferred upon you, you then offer namaz or the roza. There is no concept of a holiday or a sabbath in Islam. So we do not understand. And this was the reason when Mulayam Singh Yadav government offered a Friday holiday in UP some years back, it was the Muslims who said thanks but no thanks. Please do not communalize these issues. We do not need any holiday. Sunday is better if it is secular. We have had this discussion. Now here is the problem. Now when we did the investigation, what it was found is that Muslim families, Muslim parents, Muslim teachers, all of them are saying we prefer to have Sunday holiday. Clearly there are certain elements in society who are bulldozing and bullying their way. And the other part is they have been allowed to do so. My issue is not with the parents and with the children because they will obviously comply with the rules. It's those who are actually enforcing this and who are pushing this. They are the ones, and they are obviously getting a certain level of political patronage. Now this is harmful to our society. That's it. Because see, I'll tell you what. Today there are certain robust elements in the Muslim society there in Bihar and the Himachal region who are bullying their way through, saying we are 75%. Tomorrow you will have elements who will say we are 75% Hindus, so we should have holidays on Tuesdays. Then they will turn around. There will be certain groups who will say no, we are robust Christian groups will say how dare you have a holiday other than Sunday. This is India, sir. This is not Islamic State of Pakistan or Islamic State of Bangladesh. But this is not another. This is not eliminating such elements. I do not think it's a rocket science. Absolutely. Eliminating it is in the hands of the government.
It can be easily eliminated, please. The community as such will not demand anything like this. No, I'm with you on that. I'm with you on that. When whoever is fanning or whoever is emboldening these radical elements should also be brought to book, and they clearly have political backing, because political parties are shying clear of taking a clear position. They have allowed this to pass. Yes, Sanju Verma. ये 15-17 सालों से चल रहा है सर. अगर ये ऐसा चल रहा है तो obviously this is being allowed, no? Yes, Sanju Verma. Yeah, thank you, Anand. Anand, I think, for once I'm completely in, agreement with what Atikur Rahman is saying. The larger point is not merely about communalizing the school curriculum and school environment by bringing faith into the domain. If you recall a few months back, when there was this hijab controversy in Karnataka, whether hijab should be allowed in schools which already have a decided uniform, there were people who said, yes, hijab is fundamental to our faith, until the Karnataka High Court decided against it. So my simple point is this, that in that particular judgment, the Karnataka High Court said, follow the Karnataka State Education Act of 1983-84. And I think taking a cue from that, the Bihar government is now saying that we will follow the State Education Act of 1961-66 and the provisions thereof. So I think nobody should have a problem. If there is already something that is mandated from the beginning, then you cannot suddenly after 10 years or 20 years, 30 years say, मेरा अभी मत करा कि मैं इसको उर्दू स्कूल डेजिग्नेट करके जुम्मे की छुट्टी लेना शुरू कर दूं. So I think law of the land should prevail, but we should not give intellectual cover fire like some people started doing at the peak of the hijab controversy, when there were elements who started giving intellectual cover fire under the garb of saying that, hijab is fundamental to our faith. No, fair point made. We've got a confirmation. We are actually trying Tarakishore ji and also Vijay Chaudhary ji, but we've not been able to get through to them on the phone line. But I'm going to ask Saurabh, our teammate in down ground in Bihar, and he will follow up on this story. We've been promised action. We've been promised action. That's what we are given to understand, that action will be taken. But some big questions do arise, ladies and gentlemen. My point is, how is it that this has been allowed to pass? Can government schools change DNA on a whim? Why was the state unaware of this Jummah imposition? And if they were aware of this, then they should not have allowed it. If they have allowed it for so many decades that they thought, okay, this is the norm and this is the rule, then there is an effort, there is an error on part of the state also. So that's the second question. The third question is, did local netas, and I am not going to say one particular party, did local netas connive with the administration? Also, isn't switch without sanction an illegal move? So what are you going to do with these 500 schools and their authorities? Are you going to get down to the bottom of it and see who are the people who are applying pressure and who try to make it a norm? And imposition a reality where minority becomes majority? That's the bigger question. This definition of minority and majority has to be clearly tweaked. Because in these regions, the minority are Hindus or non-Muslim groups. Now, should we look at it from the prism of minority and majority, Sanju Verma? Because there are many within the Muslim community who are against this, who are also doing it under pressure, who are also succumbing to the will and whim of certain people who are using the clout or their robust radical efforts and push. They are also intimidating. So how do you sift the wheat from the chaff? You raised a very important point. Anand, one thing which through your show, I'm sure, this will be heard by those who frame policies. I think why the 42nd Amendment of 1976, when we changed education from being a state subject to the concurrent list, there were many grey areas. So I think, now with this hijab controversy in Karnataka, with this Jummah ki chutti in Jharkhand and, Simanchal area and Bihar, I think what these controversies tell you is that in some areas, the central government should clearly send a notification, and I'm sure that work is being done on that front to ensure there are no grey areas, which clearly states that if a particular state has an education act which prescribes the uniform, which prescribes kab chutti hogi, which prescribes kab exams kiye jayenge, which prescribes pass percentage kya hai, how the recruitment will be done, how hiring of teachers will be done, then that should be followed
to the T without any confusion. Well, I think there well, should let's be hope that a happens. central Right now, the gazette rules are also. in place for every state, but they've been looked the other way. And netas are guilty of appeasement and giving cover fire. You give cover fire to radicals, they'll come back to bite you. That's the reality. Right now, we're given to understand that the Bihar cabinet and top level ministers are in a huddle. That's why they're not answering our calls. So we will try, so we are tracking this story and we'll get you the updates and the confirmation of what Ms. Sanju Verma has shared with us. I thank all our panelists for joining us on debate number 1. Sanjuji, stay on because we got the Bengal face-off coming up after the break. Stay with us. It's Paisa, Sona, Car. Is it a cut money karobar? And does it stop with Partha Chatterjee? We debate that when we come back. Stay with us.